say this. Everybody, able to see the screen? Guys, whoever is live, you can, we can chat on the chat box so that I'll get to know that, okay, we are, you are able to hear me, you are able to see the screen. All right. Yeah. I see Murli, Mumika. Okay. You guys are able to see me, hear me. All right. All right. So first of all, thank you so much, guys, for joining. Uh, I hope you all are doing great. And some or the other way we have connected either through LinkedIn or YouTube or TopMate. So, uh, yep. So let's just start. So first, the agenda? Let me discuss the agenda of this call. What all we are going to discuss is first we'll see my content creation journey, and before to that, my experience. Right, I have around 9 plus years of experience in to IT industry. I have started my journey from service based to then product based, and then I moved it to Walmart, which is Fortune 1 company. So we'll look at that, and then some normal stuff, a typical day, how it looks like at any good software company. And we'll see some software development stuff, the process, the trending tech, if you guys are interested. Okay, we'll see some of the hot topics, what all it takes to prepare and crack some big companies, some preparation materials, and general career suggestions. As you must have seen, right, in that promotion I did, that we are going to have uh, the profile building tips, resume building tips, what to do, what not to do, and all stuff. So it's going to be there. We'll discuss one by one. And okay, let's get started. I hope you will like it, because this is the first time I'm doing live stream. But let's see. And at any moment of time, if you guys see any glitches or any issues, just let me know in the comment section. Will be I'll try my best to resolve them. Yeah. So this is about my career journey. I have completed my BTech in computer science from Bhopal, city of lakes in Madhya Pradesh in 2015. I was one of the topper from my college. Then I got selected in campus of TCS. Back then, TCS was one of the finest company. For I come from a tier 3 college. There, TCS, Infosys, Cognizant, right? These kind of companies were considered as a dream companies. So अ, हम लोग के लिए ड्रीम कंपनी हुआ करती थी ये कि भाई टीसीएस में हो गया, सो यू आर लाइक एनीथिंग, राइट? सो these companies are going to come for campus, but they were also not hiring a lot. तो मतलब बहुत ही कम लोगों का होता था उस टाइम. सो आई वाज लकी इनफ दैट आई गॉट सिलेक्टेड. एंड देन आई वेंट एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर इन अहमदाबाद. मेरा ट्रेनिंग 3 महीने की जावा में हुई थी. आई वेंट टू अहमदाबाद गांधीनगर में जो कैंपस है गरिमा पार्क. बहुत से लोग जानते हैं बिकॉज हजारों लाखों लोग वहाँ पे एनुअली ट्रेंड होते हैं, फिर वहाँ काम करते हैं. बहुत अच्छी जर्नी थी हमारी टीसीएस में. आई थिंक मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, हाउ आई ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टीसीएस टू वॉलमार्ट. आई थिंक आपने वो वीडियो एंजॉय किया होगा. मैंने बहुत डिटेल से वहाँ लिखा है, बट अभी सब मैं जस्ट अ ग्लैंस आई एम टेलिंग यू. फिर मैं 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया एंड आई वाज ट्राइंग टू स्विच. आई वाज ऑन जावा बैकग्राउंड और यूनिक्स में हम लोग कुछ काम करते थे. फिर मैं स्विच करने की तैयारी कर रहा था, बट अहमदाबाद में बैक देन लाइक अराउंड 9 years बैक, राइट, इतना माहौल नहीं था आईटी का. नाउ इट्स गुड, इट्स थ्राइविंग देयर. फिर मैं मूव किया बैंगलोर. बैंगलोर वाज माय ड्रीम सिटी सिंस आई वाज इन कॉलेज. फिर मैं यहाँ पे आया, कुछ स्टार्टअप्स के इंटरव्यू क्रैक किए, बट देन आई थॉट कि ठीक है, कुछ एक स्टेबल कंपनी से स्टार्ट करते हैं. देन आई जॉइन कॉग्निजेंट इन 2019. फिर मैं अपना प्रिपरेशन लेवल अप करते रहा, प्रिपेयर करते रहा. फिर मैं एक एप्सिलॉन कंपनी, इसमें SD2 ज्वाइन किया मैंने 21 में. इट वाज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. या थैंक्स जीएस फॉर लेट मी नो दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट. फिर मैंने एप्सिलॉन में काम किया. एप्सिलॉन एक अच्छी कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग स्टफ का है. उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे.
मेरे डीएसयू जो होता था, डेली स्टैंड अप एंड ऑल, यूएस से होता था। मेरा मैनेजर जो हायरिंग मैनेजर था और जिसके साथ मैं ऑन अ डेली बेसिस काम करता था, वो यूएस में था। तो बहुत अच्छा हमारा कोरिलेशंस था। हमारे कलीग्स यूएस के थे। हम लोग एक-दूसरे से पीआर शेयर करते थे, डिस्कस करते थे। इट वाज़ अ क्वाइट अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। वहाँ मैंने 2 साल काम किया। फिर मैंने ओला जॉइन किया कोविड के दौरान, 20 2 में आई गेस, एंड देन आई जॉइन्ड वॉलमार्ट इन 23. So that's all about my career journey so far. I'm working as a senior software engineer in Walmart right now, and things looks great here. The company is great, the perks are great. काफी मजा आता है, टीम बहुत अच्छी है। फिर लास्ट ईयर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया टेकमॉन्ग कपिल। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इस हर आफ्टर 2 या 3 स्लाइड के बाद अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में आपको बताता रहूंगा दोस्तों। अ, तो हमारा चैनल का मकसद है कि हम एक एक बड़ा चैनल ग्रो करें डेफिनेटली, बट हमारा मोटिव है कि हम एवरीथिंग विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अराउंड टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम टेक ट्यूटोरियल्स पढ़ाएंगे। मैं आपके सामने एक चीज़ भी शेयर करने वाला हूँ कि हमारा क्या नेक्स्ट प्लेलिस्ट आने वाली है। कुछ व्लॉग्स तो आपने मेरे देख ही लिए होंगे, टिपिकल डे इन सॉफ्टवेयर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन वॉलमार्ट इन बैंगलोर, समथिंग लाइक दैट। पॉडकास्ट भी मेरा स्टार्ट करने का है। एक पॉडकास्ट मैंने शूट किया है। मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट लाइंड अप हैं दोस्तों से। तो धीरे-धीरे हम लोग अच्छे दोस्त जो हैं मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, जो बाहर भी हैं, कनाडा, यूएस, सिंगापुर, लंदन, सबको लाएँगे, उनसे पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही दोस्त? आप कैसे मूव हुए उन कंट्रीज़ में और कैसा लग रहा है आपको वहाँ काम करके? तो हम लोग एक-एक करके अच्छे-अच्छे लाएँगे। बट येस, आज का दिन है सेलिब्रेट करने का कि हमने थाउज़ेंड्स प्लस सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और पहले थाउज़ेंड्स आप भी बहुत सारे उन्हीं में से ही हैं, तो आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स, क्योंकि पहले 1000 बहुत स्पेशल हैं। आप सभी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और बहुत मुश्किल भी होता है पहले 1000 सब्सक्राइबर गेन करना किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए। बट हम अपना कंटेंट का जो लेवल है एक अप करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे कंटेंट है, उनकी एडिटिंग है, उनकी स्क्रिप्टिंग है, उनकी स्टोरी है, जो टॉपिक है, वो हम आने वाले समय में अप करते रहेंगे दोस्तों। तो आई वांट कि अच्छे से मतलब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ हमारा चैनल शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है कि आप सब टेक मॉन्क बने। दैट्स व्हाट आई यूज़, हैशटैग बी अ टेक मॉन्क, राइट? क्योंकि पर्पस है हमारा आप सभी टेक मॉन्क बने, मतलब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। किसी भी डोमेन में पिक कर लो आप, फ्रंट एंड, बैक एंड, मोबाइल डेवलपमेंट, डेवऑप्स, डेटा साइंस। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल में अगर आप आएँ, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिले, लर्न करने को मिले, समहाउ आप अपने करियर में ग्रो कर पाएँ। ठीक है? तो कुछ-कुछ छोटे-छोटे हैं, जैसे टिपिकल डे होता है क्या, राइट? कुछ मीम्स भी मैं शेयर करते रहूँगा ताकि एंगेजमेंट बना रहे। मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं, राइट? सबसे पहले आपको ईमेल चेक करना होता है। बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, बट फिर उनको पता चलता है कि यार आज ये मीटिंग है, आज ये है। फिर हम लोग यूजुअली कॉफ़ी से स्टार्ट करते हैं। और फिर कब 15 मिनट का जो डेली स्टैंड अप होता है, राइट, डीएसयू, वो कब 1 घंटे का, 1.5 घंटे का खिंच जाता है। एवरीबॉडी इज़ लाइक फ्रस्ट्रेटेड और फिर सब एक-दूसरे को ना गुस्सा होते रहते हैं। बट ये सारे टिपिकल डेज़ हैं, मतलब मीटिंग से दिन भर, ईमेल रिप्लाई करना भूल गए। ये नॉर्मल बातें हैं, मतलब आईटी इंडस्ट्री में किसी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम करो तो। फिर डे टू डे स्टफ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू पिक योर क्वेश्चंस, बिकॉज़ ये सेशन जो है, राइट, ये सिर्फ मेरा नहीं है। आई एम नॉट गिविंग अ प्रेजेंटेशन हियर। हम दोनों का हम सभी का सेशन है। हम विल मेक श्योर कि ये बाय डायरेक्शनल रहे। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बताया था, राइट, आस्क मी एनीथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर। आपको जॉब स्विच नहीं हो रहा है, आपका रिज्यूमे आपको अच्छा अट्रैक्शन नहीं दे रहा है, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग की टिप्स चाहिए, मैं शेयर करता रहूँगा मेरे डेक के थ्रू। लेकिन हाँ, आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में अभी लिखिए, मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन लूँगा। ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यू नो एक साइड से पढ़ाते रहूँगा। इट्स नॉट अ टीचिंग सेशन। ओके? हम लोग मिल रहे हैं, एक-दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन मुझे आया है, व्हिच इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू फाइंड जॉब? ओके, आई सी दिस क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन ये रहा कि सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा है जॉब लेने का? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सी पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहली चीज़ है, लेट्स से आप फांग-मांग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो आई थिंक लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। आप रिक्रूटर सर्च कीजिए।
और उनको कोल्ड ईमेल भेजिए, उनको फ्रेंड बनिए, कनेक्शंस बनिए, और रिक्रूटर्स के, या जो कोई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या टेक आर्किटेक्ट है, या इंजीनियरिंग मैनेजर उन कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि क्या आपकी कंपनी में कोई हायरिंग हो रही है, क्या आप मुझे रेफर कर सकते हैं? तो बड़ी कंपनीज में वो होता है। लेकिन नौकरी अगर मैं बात करूँ, नौकरी डॉट कॉम बहुत ही अच्छी ऐप है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने हजारों लोगों को देखा है कि नौकरी से अच्छे-अच्छे उनको कॉल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं, बहुत से लोग प्लेस्ड हो रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छी सर्विस बेस्ड कंपनी हो या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, तो नौकरी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म। तो नौकरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। लिंक्डइन एंड नौकरी आर द बेस्ट जॉब पोर्टल्स। बाकी भी है, जैसे हायरिस्ट है, इंस्टा हायर है, और भी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, अगर आप चाहो तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई सी सेकंड क्वेश्चन, अमन तिवारी, विल यू प्रोवाइड मेंटरशिप? आई हैड 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ट्राइंग प्रोडक्ट बेस्ड एमएनसी। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट अमन? मैं आगे जाके शेयर करने वाला हूँ, मेरी टॉपमेट की लिंक शेयर करने वाला हूँ, जो हमारे ग्रुप्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। बिल्कुल, आई विल बी हैप्पी टू हैव यू एज़ अ मेंटी। ऑलरेडी मेरे अब हंड्रेड्स तो नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, मैं अराउंड 100 टू 100 folks को ऑलरेडी ऐसी मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। So I'll be happy to take you as a mentee. I'll share my TopMed link. You can book a session. We can have a long-term, mentorship as well. अगला क्वेश्चन है जीएस का, हाउ टू ग्रो इन इंडस्ट्री वेरी फास्ट, व्हाट इज द कोल्ड सीक्रेट इन ट्रुथ? सो सी, इंडस्ट्री में ग्रो करने का पहला तरीका आई वुड से, या ओनली तरीका आई वुड से, वो ये है कि आपकी लर्निंग सबसे बेस्ट होनी चाहिए। लर्निंग से मेरा मतलब है कि आप जिस भी टेक स्टैक को पिक करते हो, लेट्स से आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, तो आपको रिएक्ट, फिर नेक्स्ट, ये जो नए-नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, राइट? उनमें आपको हमेशा सबसे आगे होना चाहिए। आपको जो लेटेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन्स है, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि यार पिछले 1-2 सालों से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कैसे पता लगेगा? आपके अच्छे मेंटर्स हों, वो आपको बताएँगे, या आप यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव हो, लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव हो। यहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि यार ये व्यक्ति ना ये रिएक्ट के ऐसे क्वेश्चन शेयर कर रहा है, या जावा में ना, जावा 17 के बाद ना क्वेश्चन इस टाइप के लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, मशीन कोडिंग राउंड स्टार्ट हो गया है। 5 साल पहले कोई मशीन कोडिंग राउंड जैसे चीज़ नहीं हुआ करती थी, बट आज है। तो क्या होता है मशीन कोडिंग राउंड? आप यूट्यूब पे सर्च करो, कोई अच्छे बंदे हैं, वो शेयर कर रहे हैं कि भाई ये मेरे मुझसे मशीन कोडिंग पूछा गया, मैंने ऐसे आंसर किया। आप मीडियम के आर्टिकल्स पढ़ो, वहाँ पे लोग शेयर करते हैं कि यार मेरा गूगल का एक्सपीरियंस ये था, मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस था, मेरा स्विगी, ज़ोमैटो, ओला का एक्सपीरियंस ये था, मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे जल्दी तरीका जीएस यही है कि लर्निंग आपकी ऑन द टॉप हो। आप पता लगाओ कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं इंटरव्यूज़ के। इंटरव्यूज़ पता लगाओ, उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो और आगे बढ़ो। ऑलराइट? अ, ठीक है, तो जैसे डे टू डे टास्क में ऐसे शेयर करता रहूँगा आपसे। आप आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं, आप लिखते रहिए चैट में, मैं उनको पिक करता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑफ़िस या घर पे काम करते हैं, सबसे पहले हम ईमेल चेक करते हैं, फिर डेली सेटअप मीटिंग होती है, विल टेक अ कॉफ़ी ब्रेक, वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट, एंड फिर हम कोड लिखते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, पीआर शेयर करते हैं हमारे कलीग्स हमसे, पीआर रिव्यूज़ करते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं, हम उनमें काम करते हैं, और फिर मीटिंग्स ऐसे ही दिन निकल जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट द टिपिकल डे टू डे टास्क एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी डू। अगर आप 3rd ईयर, 4th ईयर में हैं, फ्रेशर हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार कैसे कंपनी में काम करते हैं। जब मैं था मेरे कॉलेज में, राइट, मैं भी सोचता था, ऐसे इमेजिन करता था यार कि कैसे काम करते होंगे, क्योंकि हमें आदत है कॉलेज की या स्कूल की, राइट? तो हमके मन में रहता कि यार कैसा, हाउ इट फील्स कि यार व्हेन यू गो टू ऑफिस एंड यू मीट फोक्स अराउंड इट, एवरीथिंग इज सो कूल, आपको अच्छे गैजेट्स मिलते हैं, मैकबुक मिलता है, कैसे काम करते हैं, कैसे इंटेलिजेंट लोग आपके अराउंड रहते हैं, राइट? तो आप जैसे-जैसे जाओगे, काम करोगे, आगे बढ़ोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के बारे में बात करता हूँ। तो ये 2020 का स्नैपशॉट डाला है, बट 2024 तक भी, आई थिंक मैं ये डेट अपडेट करना भूल गया, बट पिछले 8 या 10 सालों से आप देख रहे हो, राइट? तो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट आ रहा है। पाइथन भी है, जावा भी है, टाइपस्क्रिप्ट भी है, सी सारे हैं आप देखोगे, बट टॉप में जावास्क्रिप्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेब इंजीनियर बन सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर, नोड जेएस के साथ बैक एंड डेवलपर, फिर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो मैं करता था क्रॉस प्लेटफॉर्म आईएनएक्स से, रिएक्ट नेटिव से,
और टेंसर फ्लो जेएस जैसी जो लाइब्रेरीज हैं उससे आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हो। तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो जो आपको एक मास्टर बना दे, कि आपका कहीं भी इंटरेस्ट हो आप कुछ भी बना सकते हो। ऐसी दूसरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन से आप डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस एनालिस्ट बन सकते हो। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, आप डीएसए अच्छे से कर सकते हो। पाइथन इज अनदर सुपर लैंग्वेज। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको उनको ही चुनना चाहिए जो फ्यूचर प्रूफ हो, फ्यूचर में ओपनिंग्स हो, आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अच्छा हाइक मिल जाए। I see Murli's comment that I was outside and come home to see live. Thank you so much, Murli. You just made my day, bro. I hope कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले इस सेशन में. Uh, definitely. I'll use English as well, Murli, because few folks are comfortable in Hindi. So I'll try to be in English. Okay. I'll try English as well. I'll try Hindi as well. I'll try English. Okay. Okay. I see another new question. About how to build logic building in programming. Okay, so the question is from Priya. Okay, let me take this question. So logic building is very important, but how to gain it? Okay, it is very difficult. Let me tell you first. What happens, right? Since right in our college, we nobody teaches us in terms of building logic. मतलब हमें हमारा कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाता है कि हम लॉजिक पे काम कर सके. Okay, even though we are coming from the maths background or computer science background, there are hell lot of subjects which requires maths, which requires logic. But इंडिया में जो एजुकेशन का माहौल है, राइट, एटलीस्ट इन द स्कूल एंड कॉलेज, और जो कि टॉप एनआईटी आईआईटीज नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इतना नहीं है कि कोई स्टूडेंट पे फोकस किया जाए कि उनका लॉजिक कैसे जा रहा है। अभी तक तो ये रिवॉल्यूशन आ रहा है, कुछ एडटेक कंपनीज मेहनत कर रही हैं, टॉप आईआईटीज एंड आईआईटीज भी जो प्रोफेसर्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, पर इसमें टाइम लगेगा। आज के दिन तो ऐसा नहीं है। तो योर क्वेश्चन स्टिल होल्ड्स वैलिड कि हम कैसे लॉजिक बिल्ड करें अगर हम थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या फिर कंपनी में जॉब भी मिल गया है बट हमारा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। किसी लॉजिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लॉजिक की, लेट्स से किस कैसे इफ एल्स कंडीशन लिखनी है, कैसे एक फंक्शन कॉल करूंगा मैं, कैसे मुझे लूप लगेगा, कब लूप लगेगा, कब कौन सा लूप लगेगा, कौन कौन से प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट लगेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना चाहिए। मतलब हम क्या करना चाहिए, एक नोटपैड लो और पहले करो कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मैं बता रहा हूँ लॉजिक बिल्डिंग का तरीका कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ नोटपैड एंड राइट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, so what I have been asked is there is a requirement and this kind of a inputs I'll get and I am expected to give output in such a form. So once I'll be writing on a notepad, like online, offline, whatever it is, but once you'll write, right, this is the problem statement, this is input and this is the required output. अब फिर मैं सोचूंगा कि यार ऐसा कौन सा लॉजिक लगाऊं कि मैं ऐसे इनपुट को ऐसे आउटपुट में मोल्ड कर दूं। ऑलराइट, सो इन देन व्हाट यू कैन डू, आप सूडो कोड लिख सकते हो, जस्ट स्क्रिबल काइंड ऑफ ड्राइंग, राइट, कि ठीक है ऐसे होगा तो ये कर सकता हूं मैं, ये लूप लगाऊंगा तो ये लगाऊंगा, इससे ये नहीं आ रहा है, ओके लेट्स, ओके कि यहां से जब मैं चालू हुआ तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है, ओके आई एम फेल्ड इन दिस, लीव इट, कोई दूसरा ट्राई करो। तो ऐसे क्या होगा, जब आपको क्लियर रहेगा कि यार ये इनपुट से ना मैं ये आउटपुट चाह रहा हूं, मेरे दो एक लूप लगाने की कोशिश करी बट वो लूप ना आधे तक रुक गया है, पूरा आंसर नहीं आ रहा है, लूप चेंज कर दो, या लूप से नहीं हो रहा है, स्विच केस ले आओ, कोई से नए नए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट ले आओ, पर कोशिश करो कि हमारा आंसर उस साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब ऐसे आप लिखोगे, राइट, आपके सामने प्रत्यक्ष दिखेगा, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, ओके हाउ आई एम हेल्प, दिस लूप इज हेल्पिंग मी आउट और हाउ फंक्शन इज हेल्पिंग आउट। बट यस, उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है, कोई भी प्रोग्रामिंग हो। लॉजिक बिल्डिंग के लिए C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक तो सब में रिक्वायर्ड होता है। तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन प्रिया। हमको पहले क्लियर रखना है कि रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और फिर हमें ट्राई करते रहना है। एंड जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, राइट, एक टाइप के क्वेश्चंस की, उतने आपके लॉजिक अपने आप बनने लग जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या होता है, बेस्ट वे होता है कि आप प्लेटफॉर्म पे जैसे लीड कोड हुआ, राइट, हैकर रैंक हुआ, ऐसे जो सारे प्लेटफॉर्म्स है, राइट, इन पे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉजिक बिल्ड होने चालू हो जाएंगे। Another questions I got from Aman: do I need to hands-on Java Spring for product-based MNC or big startup? As of now, in a startup which using Node or Go, just DSA system design is enough. Okay, another good question. See, so it depends. आपका जो tech stack है, let's say if you are working on Java and Spring,
तो अगर आप बैकएंड इंजीनियर हो, जावा साइड हो, तो आपको हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है, आप जो भी टेक स्टैक में हो, ठीक है? अगर आप किसी कंपनी की तैयारी कर रहे हो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, देन वहाँ के लिए सबसे पहले हमको डीएसए क्रैक करना ज़रूरी है। तो डीएसए के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट। लेकिन लेट्स से बैकएंड के लिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि यू हैव let's say Go, we have Node.js, we have Java. Any one programming language is enough for backend. कोई भी एक चलेगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है डीएसए सिस्टम डिजाइनर, राइट, ये इंटरव्यू क्रैक करने के लिए है और सीनियर रोल्स में जाने के लिए है. बट जो आप काम करोगे वो तो आपको उसमें हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है. तो आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन अमन. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. तो एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, हम एक अपनी नई प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स इन हिंदी. मैंने कुछ वीडियोस इसके शूट कर लिए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग इसको देख पाओगे. तो हम एक हैशटैग कोशिश करेंगे 50 डेज टू कोर जावास्क्रिप्ट. जब भी आपको हमारा वीडियो पसंद आए या आप शेयर करें आपके दोस्तों कलीग्स के साथ, वी एक्सपेक्ट कि आप हमारा ये हैशटैग यूज करें, हैशटैग 50 डेज टू कोर जावास्क्रिप्ट. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अराउंड 50 डेज मतलब 50 वीडियोस का एक पूरा फुल कोर्स बनाऊं जो कि हिंदी में रहेगा, जिसमें पूरे कोडिंग एग्जांपल्स रहेंगे और हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल हायर लेवल से स्टार्ट करेंगे, हम ईच एंड एवरीथिंग हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे एंड देन विल गो टू एडवांस लेवल एज वेल. तो हम सारा कुछ कवर करेंगे 50 दिनों में, 50 वीडियोस में, और ये वीडियो बहुत डिस्क्रिप्टिव रहने वाले हैं, डिटेल्ड रहने वाले हैं, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दीज वीडियोस. सो जस्ट तैयार रहिए. हम बहुत जल्दी आई थिंक कमिंग वीक में हर वीक एक या दो वीडियो डालने का प्लान कर रहा हूँ. तो 4 से 5 महीने में हमारी पूरी प्लेलिस्ट रेडी हो जाएगी. आई वांट कि आप हमारी जर्नी से जुड़ें, और जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, राइट, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने वाला हूँ. तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आपको हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में मजा आएगा. मैं कुछ होमवर्क एक्सरसाइजेस भी देने वाला हूँ आपको, छोटे छोटे होमवर्क एक्सरसाइजेस रहेंगे, कोड बनाना कैसा है, इसका आउटपुट कैसे आएगा, जो कि एक रियल लाइफ इंटरव्यू को रिजेंबल करेगा. आप जूनियर हैं, आप सीनियर डेवलपर्स हैं, किसी भी लेवल में हैं आप, आपने इस टाइप के क्वेश्चंस या तो देखे होंगे या तो आपको फ्यूचर में देखने वाले हैं. तो हम कवर करेंगे सारा डिटेल में, सब चीजें, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है, सारे टाइप ऑफ इंटरव्यूज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर. तो आई होप कि आपको हमारा ये प्लेलिस्ट बहुत पसंद आने वाली है. फिर जैसे मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मोरलेस क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट ही में होता है. जैसे 25-30 साल हो गए इंडस्ट्री में, आज भी अगर आप देखोगे तो 80% ऑफ जो इंजीनियर है या तो फ्रंट एंड में है या तो वेब बैक एंड में है, बट सम हाउ वो अराउंड एंड अराउंड वेब डेवलपमेंट में ही काम करते हैं. कोई टेस्ट इंजीनियर है, क्यूए है, कोई यूआई यूएक्स बनाता है, कोई कोड लिखता है, कोई डेवऑप्स में है. बट ये सारा जो इकोसिस्टम है आज भी 80% ये अराउंड एक वेबसाइट की होता है. कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी एक वेबसाइट है, लेट्स से walmart.com फॉर एग्जांपल, google.com, amazon.com. तो हजारों जो इंजीनियर्स हैं वो ऑल एंड ऑल अराउंड जो amazon.com है उसी में ही काम करते रहते हैं. कैसे काम करते हैं भाई, उसमें कुछ फ्रंट एंड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है जो फ्रंट एंड डिजाइन बनाता है, फिर फिग्मा डिजाइन को यूआई यूएक्स इंजीनियर भेजता है, फिर बैक एंड इंजीनियर कोई एपीआई लिखता है, फ्रंट एंड इंजीनियर रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स यूज करके यूआईज बनाता है कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाना है. फिर होता है कोई प्रोडक्ट इंजीनियर जो नए नए रिक्वायरमेंट्स लेके आता है, फिर क्यूए इंजीनियर्स होते हैं जो टेस्टिंग करते हैं कि भाई ये फीचर जो लॉन्च किया कैसे दिख रहा है, कैसे काम कर रहा है, एंड ऑल. तो आज भी 80% ऑफ जॉब्स सराउंड्स वेब डेवलपमेंट ओनली. मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप बोलते हो तो मेजर पार्ट जो है वो वेब डेवलपमेंट ही है. ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी टेक देम. आई हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम भूमिका. आई हैव दिस क्वेश्चन, हाउ मच प्रैक्टिस इज इनफ प्रैक्टिस, इंटरव्यू के टाइम लॉजिक नहीं बना पाते हैं. तो जैसे मैंने प्रिया का क्वेश्चन आंसर किया था, सी ऐसे तो आप कभी प्रिपरेशन 100% कंप्लीट नहीं कर पाओगे. नेवर यू आर गोइंग टू बी 100% रेडी फॉर एनी इंटरव्यू. सो क्या थंब रूल है कि आप पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई लेट्स से आई एम अपीयरिंग फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर रोल और अ बैक एंड डेवलपर रोल, जो उसका टेक स्टैक है या जिस कंपनी के लिए मैं ऑप्ट करूं. लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए काम करूं. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पहले एक स्क्रीनिंग लेती है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेसिक रहता है, डीए से पूछते हैं. तो पहले मैं उसकी तैयारी करूंगा. फिर वो पूछते हैं जो मेरा टेक स्टैक है, लेट्स से गो है, जावा है, पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है. एक या दो राउंड उसके होते हैं, तो मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है. बट कितनी करनी है ये मुझे पता होना चाहिए. इसमें आपके सीनियर से पूछिए,
आपके मेंटर से पूछिए, आप पुरानी कंपनी में जो किसी ने क्रैक किया है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट के एक्सपीरियंस देखिए आप, ग्लासडोर पे जाके देखिए या किसी और वेबसाइट पे जाके देखिए, लीड कोड पे देखिए कि भाई इन लोगों से लास्ट ईयर या जो रिसेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। उस हिसाब से आप एक अपना प्रिपरेशन प्लान बनाइए। नोटपैड पे लिखिए कि ठीक है भाई, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंटरव्यू राउंड होगा 1 या 2, एक मेरे टेक स्टैक के राउंड होगा 1 या 2, एक सिस्टम डिजाइन के राउंड होगा 1 या 2 और हायरिंग मैनेजर या फिर एचआर के जो होते हैं, राइट? 4 टाइप के मोटे तौर से राउंड होते हैं। अब उनसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया? अरे यार, उनसे तो मशीन कोडिंग राउंड में ये पूछ लिया गया। अच्छा, सिस्टम डिजाइन में हाई लेवल भी पूछते हैं, लो लेवल भी पूछते हैं। तो ऐसे आप जब नोटपैड पे लिख के रखेंगे और आपको एक पता चल जाएगा कि यार इतना प्रिपरेशन के आसपास हो जाएगा। अब अभी भी ये मुश्किल है, फिर आप इंटरव्यू देना चालू कीजिए। कहीं आपके 2 राउंड निकलेंगे, कहीं 3 निकलेंगे, कहीं 4 निकलेंगे, कहीं आप पहले से बाहर हो जाएँगे। उस हिसाब से आप यू जस्ट गेज योर प्रिपरेशन और एक-एक लेवल अप करते रहिए, प्रैक्टिस करते। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब आपके इंटरव्यू निकलने चालू हो जाएँगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, दिस इज़ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन एवरी कंपनी नीड्स एक्चुअली। सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है या स्टार्टअप है। तब आपको समझ में आ जाएगा। सो आई होप आई आंसर्ड योर question. And then I have some questions from Murli again. Okay, I graduated as a B CSE in 2019. After graduation, I was in father's business. I've been learning web development for last 2 years. I'm looking for a front end full stack job, uh, but I have zero experience. Okay, and I build projects of my own. 3 years of experience. What I do, I have been applying last 4 months, got no response. Okay, so Murli, let me take your questions in a way that see, today market condition is little difficult. We have to accept the fact. And since you said that you have been working in your father's business for 2 years and now you're trying to learn web development, so for you, what I should say is that uh, see, I understand that most of the companies require, they don't hire usually freshers. They want some kind of experience, let's say 2 years or 3 years. And now you have some gap. Okay. So don't plan for product based companies or startup companies, Murli. What should I say is try for some startups. जो early age startup है, right? If early age startups are there, right, they don't have much, terms and conditions. Why? Because see, either they are in funding crunch, they are trying to build a team, they don't have any big brand associated with it, they don't have VCs, they have team of 5 to 6 people who are founders mostly. What they want is folks to start joining their company. So they don't have any terms and conditions. But they have only one condition, which is that they want you should have hands-on knowledge. They won't ask you much on data structure and algorithms. They don't want much on system design and all. But they want, let's say you are a front-end engineer, as you said that you are a web developer, you should know what exactly is basic javascript, how to create website using React, how to test my website, how to deploy my website so that others can see. So don't worry. I know that it's quite hard in today's environment to get a job, but until unless you prepare well, right, you won't be able to crack any. So आंख बंद करके प्रिपेयर करना चालू करो. जस्ट प्रिपेयर हार्ड, राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है. सो इट्स बेटर टू हैव मेंटर्स ऑफ योर इंडस्ट्री जिनको 5 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो आपको ना पढ़ा पाए और बता पाए कि भाई राइट डायरेक्शन क्या है. And since you are not getting call because of your gap, because of you are switching, trying to pivot from one industry to another industry, what I would say is you should try for some smaller companies. Basically, they will be able to hire you for sure. And where will you get such companies? I think you have to go down to cities like Hyderabad, Bangalore, Gurgaon, Noida, Mumbai, because in tier 2 tier 3 cities, uh, hardly they have much jobs. So just you have to come down to these big cities, you have to join multiple groups. Wahan you get to know about these kind of openings in smaller companies. Okay, so as I was saying, right, we'll share what are the trending technologies. So guys, any questions you have? As I'm picking questions from the chat box, right, abhi bhi aap question dal sakte ho. I'll be happy to pick your questions. So these are the trending technologies as of today, 2024, guys. Data science, generative AI, ML engineer, blockchain, AR, VR, cloud. Flutter is getting hyped. Next.js, TypeScript. तो अगर आप कोई भी हो, अगर इन टेक्नोलॉजीज के आजू बाजू घूम रहे हैं, इफ यू आर रिवॉल्विंग अराउंड एनी ऑफ सच टेक्नोलॉजीज, देन यू आर इन द सेफर हैंड्स. क्योंकि फ्यूचर में एटलीस्ट 5 years तक तो आप
100% श्योर है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, ले ऑफ इज डिफिकल्ट फॉर यू, अगर आप इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी के अराउंड भी है तो। सी आफ्टर 5 साल 10 साल कोई गारंटी नहीं ले सकता है, क्योंकि 10 साल पहले क्या माहौल था, 10 years बैक इट वॉज लिटिल डिफरेंट देन टुडे। 10 साल पहले फ्रेमवर्क्स डिफरेंट थे, रिएक्ट आया ही नहीं था, इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन वैसा था ही नहीं, तो बहुत डिफरेंस था। जनरेटिव एआई बहुत रिसेंट आया था ही नहीं, पहले ब्लॉकचेन भी नहीं था, डेवऑप्स को डेवऑप्स जैसे ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको एकदम सपोर्ट इंजीनियर जैसा ट्रीट किया जाता था। फ्लटर वाज नॉट देयर, वी हैव रिएक्ट नेटिव, और बिफोर दैट वी हैव कोडोबा, आयनिक, समथिंग लाइक दैट। डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, ये ट्रेंडिंग है आज के दिन, 5 साल बाद 10 साल बाद नहीं रहे, कोई गारंटी नहीं है। बट हमें क्या करना है, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वी हैव टू बी लर्निंग मोड ऑलवेज। एक थॉट है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लर्निंग मोड कभी खत्म नहीं होना चाहिए। द मूवमेंट, द डे उनका लर्निंग मूवमेंट या जो लर्निंग मोड खत्म हुआ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। सी बहुत सारे बेनिफिट है आईटी इंडस्ट्री में, पर्क्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आपको आज मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहेगा। यू हैव टू बी इन लर्निंग मोड ऑलवेज। क्या नया आ रहा है और क्या पढ़ना चाहिए। सी जैसे आप पाइथन में है तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप जावास्क्रिप्ट में है तो कल को एंगुलर था, फिर रिएक्ट है, फिर व्यू है, फिर नेक्स्ट जेएस है, फिर नक्स जेएस है, टाइप स्क्रिप्ट है, चीजें आती ही जाती हैं। तो जैसे जैसे नई नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आप पिक करते रहेंगे, आप हमेशा रिलेवेंट बने रहेंगे। इफ यू डोंट वांट टू गेट फायर्ड, स्टे रिलेवेंट, स्टे इन लर्निंग मोड। न्यू एज टेक जैसे मैंने बताया था, राइट, क्योंकि देयर इज अ डिओपोली फॉर गूगल एंड एप्पल, तो पीडब्ल्यूएस बहुत ट्रेंडिंग रहे। पीडब्ल्यूएस मतलब कि आपको ये एप्स कहीं से इंस्टॉल नहीं करनी है, ये वेब वेब जैसे ही पार्ट होता है, राइट, प्रोग्रेसिव वेब एप्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्स जैसे कि रिएक्ट नेटिव या फ्लटर है। आप एक बार कोड लिखें, रिएक्ट में कोड लिखें, एंगुलर में जहां भी कोड लिखें, एंड्रॉइड में भी चलेगा, आईओएस में भी चलेगा, वेब में भी चलेगा। तो ऐसी चीजें हैं जो आपको मल्टीपल टारगेट या मल्टीपल जॉब दिला सकती है, हमको ऐसी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए। वेब 3, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन कितना वायरल हुआ लास्ट 5 साल में। अभी जेनआई का टाइम है, वैसे एआर वीआर, ये बहुत न्यू एज टेक्नोलॉजीज है दोस्तों। तो ये दो कम्युनिटीज है मेरे पास। लेट मी जस्ट शेयर दीज इन our chat. So if you are not part of them, I want you guys to join these groups. यहाँ पे मैं अपने लेटेस्ट अपडेट शेयर करता रहता हूँ, और हम लोग इसमें डिस्कस करते रहते हैं। यू गाइस, यू वांट, राइट, अराउंड 150 folks are already there. You guys can start some kind of discussions. आप दोस्तों पूछ सकते हो कि भाई मेरा रिज्यूमे रिव्यू कर दो, मेरा इंटरव्यू है क्या, कोई किसी ने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू दिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी वर्क रिलेटेड या टेक एंथुसियास्ट अगर आप हो, आपको किसी भी बारे में आपके थॉट शेयर करने हैं, आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप नया टेक आर्टिकल लिख रहे हो, तो आप इसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। So this is how working from home looks like. So how many of you are working in any of the software company? Just let me know in the comment section. Which all company you guys are working on? Okay. Okay, other folks, I could see good number of folks. Which company you guys are working on? If you, or just write students. If you are a student, you can write students. Okay, mostly looks like students. Okay, let's go back. Yep. So I was just sharing about the preparation plan. सबसे पहले हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है, जैसे मैंने बताया था। ओके, प्रिया इज सेइंग वर्किंग इन टीसीएस एज ऑफ नाउ, प्रिपेयरिंग टू स्विच। ऑल द बेस्ट प्रिया, आई होप कि हमारा चैनल इज गोइंग टू हेल्प यू in making a switch from service based company to product based company. I wish you good luck that you make a switch to good product based companies, आपका करियर में एक अच्छा जंप हो, and I'm here for any kind of questions and doubts. If you have, feel free to join our communities and just watch our videos.
सो एज आई वाज शेयरिंग राइट, प्रिपरेशन प्लान। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है। मैं 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम बताता हूँ जो आज के दिन आपको पिक करने चाहिए। आइदर इट शुड बी जावास्क्रिप्ट, मीन्स एंगुलर, रिएक्ट, एवरीथिंग इज अ फ्रेमवर्क, बट कोर शुड बी जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट इज एनीथिंग फाइन, और जावा, okay? Because still Java is, huge, widely used in most of the bigger companies. Most of the bigger companies, they still use Java as a backend platform language. तो करियर के लिए आपका बढ़िया है। और ये यूज पाइथन। Python, I'm seeing Python as a future language basically. It is here since a long, but फ्यूचर में अगर आप देखोगे राइट, तो पाइथन से बहुत ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं, मशीन लर्निंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जेन एआई अभी आया है राइट। आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर बन सकते हो, बिग डेटा इंजीनियर बन सकते हो। तो आई थिंक अगर आप मुझसे आज पूछो कि क्या पिक करना चाहिए, सी जावास्क्रिप्ट इज माय लव, माय फेवरेट लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट, बट मैं भी थोड़ी थोड़ी पाइथन सीखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं मशीन लर्निंग कर सकता हूँ पाइथन से, बट I can use JavaScript, but up to certain level only. एक टाइम के बाद क्या होता है, Python is very important लैंग्वेज, जहां हम जिसका यूज करके हम मशीन लर्निंग स्टफ को पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, डेटा फीड करा सकते हैं, और यूटिलाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो यहाँ पहले हमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है, फिर वी नीड टू मेक श्योर कि उनके सारे जो कंस्ट्रक्ट है राइट, जो प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं, वो सारे क्लियर हो हमको। जैसे मैं बताया राइट कि मैं अपनी एक सीरीज बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, उसमें मैं बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आप जिंदगी में पहली बार कोड लिख रहे हैं, तो भी वो आप चैनल से जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। मैं बताऊंगा कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों प्रोग्रामिंग लिखते हैं, क्या होता है लूप, क्या होता है पहली लाइन में लिखना, क्या होता है वेरिएबल, कैसे, मतलब मैं इतना बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका दोस्त, आपके कलीग्स, आपके छोटे भाई बहन, या आपके कोई सीनियर्स भी हैं जो किसी और इंडस्ट्री से आ रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है, दे हैव एब्सोल्यूट नील आइडिया अबाउट कोडिंग, अबाउट प्रोग्रामिंग, वो भी अगर हमारे प्लेलिस्ट को देखेंगे, इफ दे वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, वेब डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल डेवलपर, दे वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, तो मेरी प्लेलिस्ट उनको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने के लिए अवेलेबल रहेगी। फिर हमारा तीसरा स्टेप रहेगा कि हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, एक पेज की एप्लीकेशन, एक फंक्शन बनाए, फिर बड़ा फंक्शन बनाए, 3-4 फंक्शन एक दूसरे से कॉल करें, एक वेब पेज से दूसरा वेब पेज, फिर हम कोड पेन में बनाएं, या फिर हम गिटहब में बना के एक दूसरे से शेयर करें। जैसे कम्युनिटीज मैंने बताई राइट, इन कम्युनिटीज में शेयर करें कि देखो मैंने आज ये चीज सीखी, लिंक्डइन पे शेयर करो, आज मैंने ये सीखा, मुझे आज पता चला। ऐसे जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते चलेंगे राइट, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से, छोटे छोटे फंक्शन से बनाते चलेंगे, तब जाके आप एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। फिर चौथी बात आती है कि देखो मैं सीख गया, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक कर ली, मैंने कंसेप्ट समझ लिए, I built some small projects and I published on GitHub. But now what? They won't give me a job. I can't sit at home and just do it for lifetime, learning new things, building projects. Most important stuff is to get a job. Then what I have to do is prepare for interviews. तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमको पहले तो इंटरव्यू पता होना चाहिए कि किस कंपनी के लिए एम कर रहे हैं। एज आई टोल्ड, उनके इंटरव्यू स्ट्रक्चर देखो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के राउंड है, एंड देन अकॉर्डिंग टू वी हैव टू प्रिपेयर। Again, guys, just a reminder, if you are here, let me know if you have any sort of questions. We are here. I'm here to help you out in profile building, in career guidance, and mentorship, and all and all. So let me know any sort of questions you have. Just let me know in the comment sections. I'll be happy to pick them, and we'll be sharing in our live stream. This live stream is dedicated to you all. Since we are celebrating our first 1,000 subscribers on our YouTube channel, I'm quite happy today. That's the reason we are having this session. All right. Okay. So study material wise, I was just sharing that. Let's say if you are coming from a front end background, I think MDN Docs, javascript.info, W3C School is a good website to learn basics of Java, JavaScript, TypeScript, Python. So ये कुछ वेबसाइट्स है, कुछ लिंक्स है जो कि एवरग्रीन है। Let's say you don't know JS yet, आपको JavaScript सीखनी, Clean Code is one of the fantastic book. Cracking the Coding Interview is one of the finest book. Guys, I expect almost all of you, without an exception, सभी के पास ये वाली बुक होनी चाहिए, Cracking the Coding Interview. अगर आपके पास नहीं है, तो मैंने अपने कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने इस बुक के बारे में बताया है, इस बुक को कैसे यूज करना बताया है, और इसके लिंक्स भी मैं, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे अभी पेस्ट कर दूंगा। पर ये बुक सबके लिए मस्ट है,
आई एम अगेन कोटिंग इट, ये बुक आपके लिए मस्ट है, मस्ट, सबसे शानदार बुक है। इसका वर्जन भी आई थिंक 7-8 साल पुराना हो गया है, बट ये बुक अभी भी वन ऑफ द फैंटास्टिक एवरग्रीन बुक है। फिर सोशल मीडिया मैंने बताया था, राइट? सी बीइंग अ प्रोग्रामर, बीइंग अ सीकर, स्टूडेंट एंड कैंडिडेट्स, राइट? हमको वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इनटू सोशल मीडिया एज इट इज, राइट? अगर आप एडिक्टेड हो लिंक्डइन में, आप आपका टाइम ज्यादा आपको करना है, राइट? तो लिंक्डइन में जाओ, ट्विटर में जाओ और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं बहुत अच्छे अच्छे जो कि पढ़ाई के बारे में बताते हैं। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम पाइथन डेटा साइंस बैकग्राउंड, हजारों चैनल ऐसे हैं जो आपको पाइथन के बारे में बताएँगे, फ्रंट एंड के बारे में बताएँगे। तो आप उनका अच्छा यूज़ करो, जस्ट मेक गुड यूज़ ऑफ दिस सोशल मीडिया गाइस। एंड एज़ आई सेड दैट, राइट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन ग्रुप्स, उनको जॉइन करो। नए-नए लोगों से नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। Uh, Murli is asking when this live about 20. I think I'll just take 10 to 15 more minutes, Murli, because it was about to be for 9 to 10 because there was some audio glitch. So we have started a little late. That's the reason I'll try to wrap this up in 10 to 15 minutes. I am into data analytics. Should I also practice a lot of coding? Well, it depends. Since you are from data analytics side, I think you should be well versed of your tools, probably Tableau, Looker, Power BI, but Python and SQL is must. So I don't want you to learn, heavy DSA problem solving or coding basically in Python. But yes, Python coding, SQL coding is must for data analysis as well. And if you are into data analytics, I want you to grow as a data engineer or data scientist eventually. But for that, they require a good amount of coding. I won't say as compared to software engineer, you need that amount of coding. But normally, it would be good that if you know, if you have good hands-on your programming language, be it Python or R or whatever it is. So yeah, guys, this is all about my mentorship program through TopMed. I come as a 1% mentor. It is showing me 30 bookings, but I have crossed 36 bookings. I started recently this. So if you are looking forward for services like profile building, Naukri and LinkedIn review, resume review, just common friendly chat, chai pe charcha. You just want to meet me and get to know each other. You want to have long term mentorship. So I have one session service long term mentorship where we'll have 5 sessions. हमारे पास 5 सेशन होंगे एक दूसरे के लिए। हर 15 दिन महीने में आप वो सेशन शेड्यूल कर सकते हो। एक सेशन चाहिए आप वो ले सकते हो। बहुत सारी सर्विसेज है मेरी वेबसाइट पे, आप चाहें तो जाइए एक बार एक्सप्लोर कीजिए मेरी वेबसाइट। जो सर्विस लगे आपको आप बुक कीजिए। मैंने 20% का डिस्काउंट ओपनली लगा दिया सबके लिए। अगर आप कहते हैं कि सर मैं 3rd ईयर में हूँ, 4th ईयर में हूँ, आई डोंट वांट टू पे मच, तो आप मुझे पर्सनल डीएम करिए लिंक्डइन पे या फिर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको पर्सनल एक कूपन कोड ही भेज दूंगा जो आपको जो सर्विसेज के कॉस्ट है। वैसे तो मेरी सर्विस की कॉस्ट बहुत ज्यादा ही कम है, मतलब 100 200 300 रुपए, बिकॉज मेरा मकसद यहाँ पे पैसे कमाना नहीं है। आई वांट टू हैव लॉट्स ऑफ मेंटीज, ताकि सब अपना करियर ग्रो कर पाए। जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप ना करें, कैसे स्विच मैंने किया है मैं अपने आपकी हेल्प कर पाऊं। बट इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म कि जो प्लेटफॉर्म है इनका टॉपमेट बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो मेरे टेस्टिमोनियल्स पढ़ सकते हैं। अच्छे खासे टेस्टिमोनियल्स हैं। मेरी रेटिंग्स अगर आप देखोगे तो 4.9 है। तो इट्स ऑल अबाउट माय टॉपमेट। तो जल्दी से जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, बुक कीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? ओके, लेट मी गो अहेड। सो कुछ गलतियां करते हैं दोस्तों, जो जूनियर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो आई वांट टू मेक श्योर कि वो गलतियां आप ना करें। तो मैं जस्ट एक सिंपल स्लाइड में शेयर करना चाहता हूं कि व्हाट आर डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? आपको एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी है। आपको हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जैसे 3 या 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक नहीं करनी है। जैसे मैंने बताया, पाइथन चुनो, जावास्क्रिप्ट चुनो, जावा चुनो, ठीक है? और उसी के एक्सपर्ट बन जाओ। हमको मास्टर ऑफ ऑल नहीं, जैसे जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो वाला कंसेप्ट हमको नहीं करना है। हमको बनना है मास्टर ऑफ वन, ना कि जैक ऑफ ऑल, ठीक है? और हमको उस लैंग्वेज के अराउंड सारे फ्रेमवर्क्स आने चाहिए, उसके रिलेटेड सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आने चाहिए, जो कंपनियां टारगेट करती हैं वैसे वो सारा हमको आना चाहिए, ठीक है? हमको
एसडीएलसी साइकिल में उस फ्रेमवर्क, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या-क्या रोल है, वो सब भी आना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो लोग क्या करते हैं स्टार्ट जैसे अगर मुझे वेबसाइट डेवलपर बनना है तो मैं सीधे जंप कर जाऊँगा रिएक्ट में। नहीं, हमको स्टार्ट करना है बेसिक से, जावास्क्रिप्ट से, प्रोग्रामिंग से तभी मैं रिएक्ट सीख के वेबसाइट डेवलपर बन सकता हूँ। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। ट्राइंग टू लर्न एवरी टेक्नोलॉजी अराउंड। आज देखो भाई वेब डेवलपमेंट मुझे आता है। कल को किसी ने कहा है कि यार गो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने थोड़ा गो सीख लिया। फिर किसी ने कहा यार पाइथन बहुत अच्छा, चलो पाइथन सीख लेते हैं क्योंकि जनरेटिव एआई बहुत ट्रेंडिंग है। तो ये हमको ऐसे हमेशा डाइवर्टेड नहीं रहना है। 1 या 2 इज़ ओके बट 3 या 4 बिल्कुल नहीं बनना है हमको। ठीक है, तो ये मेरे कुछ सोशल मीडिया की लिंक्स है दोस्तों, मैं शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इनमें से किसी भी वेबसाइट में, ठीक है? आई थिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही ऑलरेडी रहेगा। देन हम बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग की, तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों। अ, आपको पता होना है कि मतलब हमें कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमें प्रेज़ेंस बनानी है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, गिटहब है, स्टैक ओवरफ्लो है, हैकर रैंक के लोग बताते हैं, कोडशेप का बताते हैं। खुद की पोर्टफ़ोलियो वेबसाइट बनाओ, जैसे मेरी एक है किया लैब्स, अगर आप जाएँगे तो मेरा प्रोजेक्ट देख सकते हैं। अगर आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट गिटहब में अपनी एक प्रोफ़ाइल बनाइए, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि अगर आप आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? तो इट्स लाइक बी योर ओन बॉस। आप ब्लॉगिंग, राइटिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे वेब डेवलपर हैं या पाइथन डेवलपर हैं, तो आप वहाँ से ब्लॉग लिख के पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अ अ, जैसे इंस्टाग्राम पे आप बना सकते हैं, यूट्यूब पे बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मतलब आई हैव बीन टू वेरियस एडटेक स्टार्टअप्स जैसे अल्मा बेटर है, क्रायोडू है। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें मैंने कई टाइम तक एज़ अ इंस्ट्रक्टर पढ़ाया है, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। मैं आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। तो सी इन इन योर फ्री टाइम, स्पेयर टाइम आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अलावा। ऐसा नहीं है कि आप जॉब में हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, या आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको किसी कंपनी ने ले ऑफ कर दिया है तो यू विल बी लाइक अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं दोस्तों अभी भी। यप, तो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सेशन। ये कुछ जनरल सजेशंस हैं जो कि मैं सबको बताता रहता हूँ कि अच्छे से प्लान करना है, शेड्यूल करना है, कि कब क्या पढ़ना है ना, डेली जो आपका होता है। बहुत अच्छे से स्टडी करना है, बेसिक से पकड़ के स्टार्ट करना है। प्रैक्टिस बहुत करनी है, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं कोड पेन पे या यहाँ पे एक-दूसरे से शेयर करना है। एक ग्रुप स्टडी करो 4-5 जो अपने जैसे लोग हैं जो सब पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का एक ग्रुप बना लो। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो जावास्क्रिप्ट का एक ग्रुप बना लो। ओके, ग्रुप स्टडी करो, एक अच्छा मेंटर ढूंढो आपकी फील्ड में। अगर आप कोई कंपनी एम कर रहा है वॉलमार्ट, आई विल बी योर मेंटर। आप कंपनी एम कर रहे हैं गूगल, तो कोई बंदा लिंक्डइन पर ढूंढो कि यार ये गूगलर है, मैं इसको आई करता हूँ, मैं इसको अप्रोच हिम। उससे बोलो कि भैया आई वांट टू बी अ मेंटी, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम मेंटरशिप, कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम गाइडेंस सो दैट आई कैन आल्सो क्रैक गूगल, आई कैन जॉइन गूगल। फिर कुछ-कुछ अच्छे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, जैसे मेरे ग्रुप्स मैंने आपको शेयर किए टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, तो आप इनमें जॉइन करके लाइक माइंडेड फोक्स से, एंथुसियास्ट जो है उनसे मिल-जुल के बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? कुछ जो अच्छे डेव एडवोकेट्स हैं, जैसे मैंने बताया गूगल जीडी प्रोग्राम होता है, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट, अ, और जो माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स होते हैं, दीज़ आर सम गुड गाइज़, तो दीज़ यू कैन फॉलो। सो ओपन सोर्स इकोसिस्टम है, उसको सपोर्ट कर सकते हो, वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा जब आपका जो ओपन सोर्स पे यो कंट्रीब्यूशन रहेगा, राइट? व्हेन इट विल बी यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ folks, lakhs of folks around the world, it will boost your confidence. So that is again another good thing. Okay, I saw a few more comments. Let's just scroll over them. Keshav is saying, I'm into Python. Kudos, Keshav. Python is one of the finest language, and I think it is future safe as well. So it's good that you're learning Python. All the best. Murli is asking, my comment got deleted automatically when I post my portfolio link. Uh, Murli, I need to see the comment, live stream settings.
But yeah, feel free to drop your portfolio link in our Telegram and Discord groups. I'll be happy to check out, and the folks in these groups, right, they will be happy to check out your portfolio. Oh, you already have muralikrishna.versal.app. Surely, I'll just check this out, Murli. Meanwhile, you can share in our groups as well, so folks will be able to check this out. I think it's about 10, and we are good. So thank you, Denke, Mercy, and आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा सेशन, यू नो, जो मैंने सजेशंस दिए, जो मेरा जो डेक था, प्रेजेंटेशन था बेसिकली, एंड आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस आपके आंसर किए, एंड विल ट्राई टू हैव दीज live streams quite often, let's say every month, if not every month, probably every alternative month. We'll try to have these kind of sessions, and और भी अच्छे अच्छे टिप्स आपको देता रहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट, हमारी कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, टॉप मेट में अगर आप चाहते हैं मेंटरशिप लेना, आप मेंटरशिप ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल मैंने शेयर किया आपके साथ, राइट, कुछ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी हमने, और जैसे मैंने आपको बताया, राइट, कि एक अच्छा अनाउंसमेंट था आज की, एक प्लेलिस्ट लॉन्च कर रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स इन हिंदी। मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मतलब अगर आप नए हैं, आपको कोड लिखना कभी नहीं आता, आप पहली बार जिंदगी में कोड लिख रहे हैं, राइट, तो उस लेवल से मैं आपको स्टार्ट करूंगा, एंड आई प्रॉमिस कि व्हेन दिस प्लेलिस्ट विल बी एंडेड, राइट, अगर जब 50 वीडियोस आप देख लोगे तो यू विल बी ऑन अनदर लेवल। जो आपको आज नहीं आता था, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे जाएगा, यू विल बी एबल टू नो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। ये वीडियोस, these videos are going to be quite descriptive, quite detailed, and you know, I'll try to have lots and lots of code snippets around it. I'll share you some homework exercises. I'll try to share some interview questions on that. So yeah, it will be like, each and everything about these core fundamentals of JavaScript will be there. So I think that's all I have for this live stream. I hope you have, enjoyed our session, this live stream. I'm here for a couple of more minutes if you have any questions. And okay, I think Priya is posting that startup next web IT solutions private limited. Okay, so I think you must be answering my questions which I asked earlier, that which company do you work for. Okay, good to know that, Priya, you're working on a startup. It's just prepare hard, try to switch for a better startup, for better product based companies, stable MNCs, and then eventually some bigger companies. All right, then I think that's all we have for today. So I hope you like the sessions. Just give you a thumbs up, show your loves, make use of that love emoji, and hope to meet you in next live streams and in the next sessions. All right, bye bye, good night, thank you so much for joining. See ya, Murli, definitely. All right, guys, I'm just ending the stream now. Bye bye.